Hi, good morning, students. In my previous lecture on IPC, we were on the topic of attempt. Attempt is the last section. However, when we talk about attempt is the first act in IPC which is always punishable. If we go through the process of a crime, it starts with formation of an intention. Intention is not punishable in IPC. After the intention is formed, the person starts preparing for committing that offense. This preparation ultimately leads to an attempt. And the attempt, if successful, becomes an act. It is only the attempt which is always punishable. Because intention and preparation are too remote from the actual act. Plus, even after I made a preparation, I may rescind my mind. I may have a change of mind. Or for whatever reason, I may give up the idea of committing that offense. This is the reason why preparation as a general rule is not punishable in IPC. However, we saw yesterday that certain preparations which are connected with very serious offenses are now punishable in IPC. For example, waging a war, preparation to wage a war against India, or a preparation for dacoity, and all, making coins and instruments for forgery. All those are preparations, but then they are very few. As a general rule, preparation is not to be taken as an offense. I quoted Venkat Rao, which is a landmark on attempt, in which the Honorable Supreme Court has laid down the various stages. I would just like to go through those stages once again so that everybody is clear on these. In K. Venkat Rao, the Honorable Supreme Court held that the reading of 511 reveals that there are three essentials of the offense of attempt. Firstly, the accused has an intention or a mens rea to commit an offense. Secondly, he has done some act or taken what I call a step forward, which we now call the preparatory stage. This is a step forward towards the commission of the offense. It is a penultimate act. It is not the final act, which will either fructify into an act or not. And thirdly, for reasons beyond his control, he failed to commit the intended offense. ये तीन स्टेजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं. सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1973, सुप्रीम कोर्ट. Since preparation is not an offense, and an attempt is always an offense, that is the reason why it is very, very important to see whether my act falls in the definition of preparation or is it attempt. Naturally, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी थिन लाइन है प्रेपरेशन में और अटेम्प्ट में कि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कोर्ट्स को. एंड नॉट मच लॉ इज अवेलेबल एज प्रेसिडेंट्स. तो नेचुरली जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कोर्ट के पास, वो है ये डिसाइड करना कि ये एक्ट मेरा प्रेपरेशन में आता है और डज दिस एक्ट फॉल अंडर अटेम्प्ट. Because if it falls under preparation, it is not punishable. But if it falls under attempt, it is always definitely punishable. हमने कल देखा कि अटेम्प्ट को चार तरीके से आईपीसी में डील किया गया है. एक वो ऑफेंसेस जहां पे एक्ट और अटेम्प्ट को इकट्ठा लिखा गया है. Whoever acts or attempts. बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, मोस्टली जो है वो सीरियस ऑफेंसेस हैं.
दूसरी कैटेगरी अटेम्प्ट की वो है जहां पे सिर्फ अटेम्प्ट का अलग सेक्शन बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल 307, 308, 393, ये सारे जो है ये अटेम्प्ट के अलग अलग सेक्शंस हैं। तीसरा वहां वो अटेम्प्ट जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है पर एक्ट पनिशेबल नहीं है, नेचुरली सुसाइड का। जो इनके अलावा हैं वो सारे आते हैं 511 में। बट यू नो नाउ, एज ए सेड यस्टरडे, मैंने एग्जांपल दिया था कि एक मैच स्टिक कोई लाता है, कोई मेरे खेत में फसल को आग लगाना चाहता है और वो मैच बॉक्स खरीद के लाता है, क्या उसको अटेम्प्ट माने? आपके खेत में घुस गया, क्या उसको अटेम्प्ट माने? उसने मैच जला ली, क्या उसको अटेम्प्ट माने? कि उसने मैच जलाई और सामने मालिक को देखा, बुझा दी, क्या इसको अभी भी हम अटेम्प्ट माने? ये सारा एनालिसिस, एज आई टोल्ड यू, केम अप इन आर वर्सेस टेलर 1895 में। तो नेचुरली अब क्वेश्चन उठता है, हाउ डू वी डिटरमिन वेदर माई एक्ट फॉल्स अंडर प्रेपरेशन और डज माई एक्ट फॉल अंडर अटेम्प्ट? ये मेन क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड है। इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि मेरा एक्ट अटेम्प्ट है या फिर वो प्रेपरेशन है, वी हैव सर्टेन थ्योरीज। हम उन थ्योरीज में चलते हैं। पहले हम लेते हैं प्रॉक्सिमिटी, द थ्योरी ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सी, जहां तक प्रॉक्सिमिटी का सवाल है, I will divide this rule of proximity into two parts. Proximity in relation to time and action, and proximity in relation to intention. Proximity rule जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अटेम्प्ट को डिसाइड करने के लिए कि ये प्रेपरेशन है या अटेम्प्ट है। ये जो proximity rule came up under consideration of the Honorable Supreme Court in a very landmark case of state of Maharashtra versus Muhammad Yaqub. Muhammad Yaqub, YAKUB, 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और बाद में एक और केस आता, इनफैक्ट देयर वाज अनदर केस, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल। ये पहले आया था, बट लैंडमार्क जो है मोहम्मद याकूब को मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस किया गया। लेट्स डिस्कस दिस केस टू अंडरस्टैंड दिस, बेसिकली दिस प्रॉक्सिमिटी थ्योरी, द प्रॉक्सिमिटी रूल। याकूब केस में क्या हुआ था? देयर वाज अ स्मगलर। उसने चांदी की, वो टाइम था, ये हम बात कर रहे हैं 1980s में, सोना और चांदी की बहुत स्मगलिंग होती थी। तो उसने स्मगलिंग करने के लिए वो एक बॉम्बे के एक बीच में पहुंच गया। चांदी और इस सोने की स्मगलिंग जो होती है वो फेरा में भी पड़ती है और भी माइनर लॉज हैं। कस्टम कंट्रोल एक्ट है, एक्सपोर्ट गोल्ड कंट्रोल, एक्सपोर्ट कंट्रोल, सिल्वर एक्सपोर्ट कंट्रोल, ऐसे एक्ट्स हैं। तो इस एक्यूज ने किसी से टाई अप किया होता, स्मगलर से। तो एक छोटा सा जो ट्रक होता है ना, जो छोटा गट्टू ट्रक कहते हैं जिसको, बारीक जो छोटे छोटे ट्रक होते हैं जो टेम्पो टाइप, वो लेके बीच पे पहुंचा रात को, और सारी उसमें बहुत सारी चांदी की सिल्लियां थी, बार्स थे, इनगट्स थे, उनको नीचे जमीन पे उतारा और सारी पाइल अप कर दी। कस्टम वालों को पहले खबर मिल गई थी, कोई मुखबिर ने खबर दे दी थी। सो दे वर ऑल वेटिंग फॉर हिम। वो चुपचाप बैठे रहे, छुप के बैठे हुए थे। इसने जैसी सिलियां उतारी, बीच पे रखी, तब दूर से एक मोटर बोट की आवाज आई, जो मोटर बोट इसकी तरफ आ रही थी। लाइट भी थी उस मोटर बोट में।
तो जैसी मोटर बोट की आवाज आई, पास आई, तो कस्टम वालों ने लाइट्स ऑन कर दी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, और इसको पकड़ लिया। जैसे ही लाइट्स ऑन की, कस्टम्स की पता चल गई लाइट्स ऑन आ गई हैं, तो वो जो बोट थी वो मुड़ के पीछे भाग गई। सी था, वो भाग गई, अपना पकड़ी नहीं गई। नाउ द क्वेश्चन केम अप, नाउ ही वाज चार्ज्ड अंडर many acts. We had the Imports and Exports Control Act 1947, Customs Act 1962, FERA 1947. ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया कि नहीं, ये तो अटेम्प्ट है। जब उसकी अपील गई असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज के, उसने एक्विट कर दिया। किस ग्राउंड पे? कि ये तो अटेम्प्ट नहीं है, प्रेपरेशन था। देयर वॉज नो डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑफेंस। हाई कोर्ट के पास मामला गया, हाई कोर्ट ने भी एक्विट कर दिया सेम ग्राउंड पे कि ये प्रेपरेशन है, ये अटेम्प्ट नहीं है। मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। Now the Supreme Court laid down these two rules of proximity in relation to time and action and in relation to intention. यहां पे हम देखें, अगर रात के 2 बजे सिलियां लेके कौन चांदी की बीच पे बैठता है? कौन आदमी अपना टेम्पो ले जाके वहां पे पूरी चांदी की सिलियां उतार के रखेगा? वो भी रात के 2 बजे, तो शेडी है। और नेचुरली सिलियां कोई पागल आदमी उतारेगा? स्मगलिंग के लिए आएगा। तो देयर वॉज प्रॉक्सिमिटी बोथ ऑफ टाइम एज वेल एज एक्शन। एक्शन को हम यहां बात करेंगे, वी विल कॉल इट मेंटल प्रॉक्सिमिटी। आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो मेंटल प्रॉक्सिमिटी थी, टाइम सही था। ए बी, that there was a clearly act of smuggling was going to take place. The fact that he had already unloaded the silver and the boat had already come, there was a whirring sound, the motorboat could be heard, though it was never caught and it went away. But then it is not mere preparation, it is now an attempt. सो जहां पे भी हमारा एक्ट 2 टेस्ट्स फुलफिल करता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड एक्शन, और दूसरा प्रॉक्सिमिटी विद रिलेशन टू इंटेंशन, ऐसे मामलों में वी कैन से दैट इट इज नो लॉन्गर अ प्रेपरेशन, इट हैज ऑलरेडी बिकम एन अटेम्प्ट। इसी जजमेंट में जो मैंने आपको बताई थी, आर वर्सेस टेलर की कोट की गई कि जहां पे उसने माचिस जलाई, माचिस जब तक वो लाया था प्रेपरेशन था, जब तक वो उसके खेत में नहीं गया था प्रेपरेशन था। जैसे ही वो खेत में घुसता है और उसकी फसल के पास खड़ा हो जाता है और माचिस बाहर निकालता है, तभी मालिक आया तो और कहता है क्या कर रहा है? तो क्या ये प्रेपरेशन है, क्या ये अटेम्प्ट है? नाउ वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रात के अंधेरे में उसके खेत में क्या करने गया था? माचिस क्यों निकाली थी उसने, वो भी उसके खेत के अंदर जाके? तो टाइम, एक्शन और इंटेंशन दोनों जो थे वो क्लियर थे दैट हिज एक्ट हैड गॉन अ स्टेप बियॉन्ड प्रेपरेशन and now it had become an attempt. आर वर्सेस टेलर में उसने माचिस जला दी थी, पर उसने बुझा दी। एक बार उसने माचिस जला दी और ड्यू टू सम रीजन, और रीजन क्या था कि सामने कोई उसको देख रहा था, उसने आग नहीं लगा पाया, पर यह उसका एक्ट अटेम्प्ट था। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम था,
मेंटल प्रॉक्सिमिटी थी, इंटेंशन थी। हेंस इवन दो उसने खुद बुझा दी, इट वॉज टेकन टू बी एन एक्ट ऑफ अटेम्प्ट। I hope I'm clear on the first theory of proximity, which now has to be seen in context of what I say, proximity, two proximities, proximity in relation to time and action, and second, proximity with relation to intention. अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी में। The second theory is what we call the doctrine of locus poenitentia. I'll write it down. Locus poenitentia. Locus poenitentia. Poenitentia. Poenitiae, locus, locus, locus poenitentia. Locus poenitentia का मतलब है टाइम फॉर रिपेंटेंस, रिपेंट करने का टाइम। अगर कोई आदमी अपने आप अपना एक्ट रिसेंड कर देता है तो फिर वो प्रेपरेशन ही रहेगा, वो अटेम्प्ट नहीं रहेगा। ए ने बी को मारने के लिए पॉइजन खरीदा, अभी तक प्रेपरेशन है, अभी तक प्रॉक्सिमिटी नहीं हुई है। अभी एक चांस है कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। ए बी जिसको पॉइजन करना है उसकी खीर में पॉइजन डाल देता है। अभी भी टाइम है कि वो अपना माइंड चेंज कर ले। बट मोमेंट वो बी के आगे खीर रख देता है, बी उठ जाता है कि नहीं मुझे खीर नहीं खानी, मुझे वैसी मीठा नहीं अच्छा लगता। अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि अब टाइम फॉर रिपेंटेंस खत्म हो गया। अब मेरे पास टाइम फॉर रिपेंटेंस नहीं बचा है। प्रॉक्सिमिटी में भी आ रहा है और मेरा टाइम फॉर रिपेंटेंस की जगह नहीं बची। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां मेरे पास वक्त है कि मैं अपना डिसीजन वापस ले लूं, वहां पे हम उसको अटेम्प्ट नहीं मानेंगे। इसका जो हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट आया इस थ्योरी पे, थ्योरी ऑफ पोइनिटेंशिया पे, वो है मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1970 सुप्रीम कोर्ट। ये याकूब और मलकियत सिंह हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं अटेम्प्ट पे। इन दिस केस क्या हुआ था, ये 1970 का मामला है जब फूड ग्रेन्स की स्मगलिंग होती थी। पंजाब उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी पूरी तरह से, और पंजाब जो था वो अन्नदाता था पूरे इंडिया का। पैडी और व्हीट यहीं से जाता था, क्योंकि अब नेचुरली एक्सपोर्ट होता था और बाहर जाके काला बाजारी होती थी, पंजाब में कमी पड़ जाती थी वगैरह। तो पंजाब ने एक लॉ बनाया, पंजाब पैडी एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1959। इस पंजाब पैडी एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1959 के तहत आप पंजाब से बाहर नहीं निकाल सकते थे। यू कुड नॉट टेक द फूड ग्रेन्स आउट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा।
इस केस में क्या हुआ कि एक ट्रक पकड़ा गया स्मालखा बॉर्डर पे, जो दिल्ली से थोड़ा 17-18 किलोमीटर पहले। वहां पे रेड मारी और ये ट्रक वहां पे ढाबे पे खड़ा था, फूड ग्रेन वालों ने रेड मारी, पकड़ लिया। मामला लोअर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया ये कन्विक्शन। क्या ग्राउंड पे? ये हो सकता था जो अभी ये 14 मील का फर्क है, 18-19 किलोमीटर है, जब ये यहां ड्राइवर खाना खा रहा था ढाबे में, इसका माइंड चेंज हो जाता। अभी क्रॉस तो नहीं किया था ना ये, ही हैड अ टाइम फॉर रिपेंटेंस। हो सकता है ये अपना डिसीजन रिसेंड कर देता। अभी टाइम था रिपेंटेंस का, अभी बॉर्डर दूर था, रात थी, खाना खा रहा था, हो सकता है यहां सो के माइंड चेंज हो जाता, वापस चला जाता या और कुछ करता। He might have changed his mind and not proceeded to Delhi. There was a time for repentance. How can we take stock of a situation that we are presuming that he would have gone? ये थ्योरी ऑफ पोनिटेंशी का हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट आया और इस बेस पे उसको छोड़ दिया गया। याकूब का जब केस आया तो वहां पे जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने यही बात कही। याकूब का जो केस है वो आता है 1980 में, 10 साल के बाद। उन्होंने कहा सर सेम चीज मलकियत डिक्टम यहां भी अप्लाई करो। उसने अभी सिल्लियां उतारी थी, अभी गई तो नहीं थी, क्या पता वो माइंड चेंज कर लेता। तो याकूब केस ने मलकियत केस को रेफर किया और कहा कि हर केस डिफरेंट है। याकूब केस और मलकियत केस में बहुत फर्क है। याकूब केस में क्लियर नजर आ रहा था कि उसका माइंड बन चुका है। देयर वॉज अ क्लियर मेंटल प्रॉक्सिमिटी इन केस ऑफ याकूब। ऑलरेडी ही हैड अनलोडेड द सिल्वर इनगट्स, ऑलरेडी द बोट वॉज कमिंग। It was only because the customs put on their lights that the boat ran away. The Malkiyat dictum is not applicable at all to Yaqub case. In Malkiyat case, he had the time. He not only had the time, he had the time for repentance and he could have changed his mind. He was still 14 miles, 18-19 किलोमीटर दूर था। तो इसीलिए मलकियत डिक्टम को हम याकूब में अप्लाई नहीं कर रहे। ये दो डॉक्ट्रिन्स के ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। सो हम यही चीज अप्लाई करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई प्रिपरेशन पे कोई जनरल लॉ नहीं दिया जा सकता। प्रिपरेशन अटेम्प्ट में कब कन्वर्ट हो जाती है is a question of fact. Each case will depend on its own merits. We cannot generalize the law of preparation. Malkiyat, the Honorable Supreme Court accepted that there was time for repentance. Yaqub, the Supreme Court refused because of the special conditions which were prevalent in Yaqub case. So I hope now everybody is clear about these two theories, that how we will discern preparation from attempt. तीसरा जो टेस्ट है वो है इक्विवोकैलिटी टेस्ट, EQUIVOCALITY। इक्विवोकैलिटी का मतलब क्या होता है? विदाउट डाउट, कोई डाउट ही नहीं रहता।
ऐसे केसेस में क्या होता है, इक्विवोकैलिटी टेस्ट कहता है कि जहां पे प्रेपरेशन क्लियरली बता रहा है कि वो अटेम्प्ट है, देयर इज नो रूम फॉर डाउट, तो वहां हमें उसको अटेम्प्ट लेना है. सो व्हेन देयर इज नो एम्बिग्विटी whether this is an attempt or a preparation, वहां पे we can take it as attempt. If I was to quote Glanville Williams, he says the steps taken speak for themselves, that this is an attempt and not a mere preparation. So when a person conducts himself in such a way, ऐसे मामलों में एक कॉन्डक्ट बहुत रेलेवेंट हो जाता है. जो हम सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में पढ़ चुके हैं, वो कॉन्डक्ट बहुत रेलेवेंट हो जाता है ऐसे मामलों में. वेयर अ पर्सन बाय हिज कॉन्डक्ट शोज दैट ही इज गोइंग टू जस्ट कमिट द एक्ट, तो हम उसको अटेम्प्ट के श्रेणी में ला सकते हैं. अ पर्सन हैज लोडेड अ गन. He's in anger. His conduct is that he's going to shoot. So I pick up a gun. I come to your house, pick up a gun, load the gun, and I am now pointing it at you. There is no room for doubt. And my conduct is such which shows that I am going to fire. सडनली पुलिस इस टाइम पे आ जाती है या लाइट ऑफ हो जाती है, मैं फायर नहीं कर पाता हूं. क्या मैं इसको अभी भी प्रिपरेशन मानूं? नहीं. इक्विवोकैलिटी टेस्ट कहता है जहां मेरा कॉन्डक्ट बिट्रे कर रहा है कि ये प्रिपरेशन से आगे जा चुका है, चाहे एक्चुअल मैंने अटेम्प्ट ट्रिगर नहीं दबाया, फिर भी हम इसको अटेम्प्ट तक ले जाएंगे. ये चीज इक्विवोकैलिटी टेस्ट हम बहुत बार यूज करते हैं रेप केसेस में. वेयर अ मैन सेक्सुअली असॉल्ट्स अ वुमन, ही स्टार्ट्स डिसरोबिंग हर. वेदर दिस वुड बी अमाउंटिंग टू प्रेपरेशन और एन अटेम्प्ट. अगेन इट इज द कॉन्डक्ट विच विल क्लैरिफाई. If the conduct of the man is very clear that he has a clear intention to rape. ये मामला आया था हमारे पास, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजेंद्र गांधी 1997. In this case, and there's another case of Supreme Court, Madan Lal versus State of Jammu Kashmir, 1998 Supreme Court. The accused disrobed the girl and tried to commit rape. But before they could commit rape, they ejaculated. They could not do it. The question came up whether this would amount to attempt. They had caught hold of the girl, disrobed the girl, but in the excitement, the accused had ejaculated before committing the act. Both these cases, the defense took the plea that this was mere preparation. The Honorable Supreme Court in both these cases held that the equivocality test very clearly says here the person had come to the room, had disrobed the girl with an intention of raping her. There was proximity of time. There was mental proximity. Merely because he could not initiate the act further does not give him any right to defense. It will be taken as attempt to rape. 376 has to be read with 511.
So wherever there is no room for doubt, there is no room for doubt whether what is actually the intention of the accused, there also the preparation graduates to attempt. So our third test was what we called the equivocality test. I now come to the most controversial of all theories, the most controversial test, the impossibility test. This test has undergone a lot of change. What is the impossibility test? An attempt which is impossible cannot be taken as attempt. 19th century तक impossible attempts were not punishable. We have R versus Williams, 1893. It was held in this case that if a person puts his hand into the coat of another person in order to steal his purse and his pocket is empty, then it is not attempt. R versus William, 1893. ये पहले का लॉ था, अब नहीं है ये. प्लीज रिमेंबर दिस. अब क्या लॉ है? अब ये लॉ है कि मेरी तरफ से तो मैंने एक्ट कर दिया. जैसे ही मैंने आपके कोट में हाथ डाला, ये तो उसकी अच्छी किस्मत थी कि कोट में पर्स नहीं था. मेरी तरफ से अटेम्प्ट हो गया था. तो प्लीज रिमेंबर, आर वर्सेस विलियम is no longer holds good in Indian law, at least. यहां पे अब क्या लॉ है हमारा? सपोज आई हैव गॉन टू, मैं आपके घर आता हूं, आपकी एक संदूक, आई होप संदूक ही कहते हैं, बॉक्स, एक बॉक्स उठाता हूं. मुझे पता है कि उसमें आप सोना चांदी रखते हो, अपने सारे वैल्यूएबल्स वहां रखते हो. मैं उसको तोड़ता हूं, खोलता हूं. आपने एक दिन पहले वहां से सारा सोना निकाल के आपने लॉकर में रख दिया, तो वो खाली है. एज पर आर वर्सेस विलियम्स, 1893, इट इज नो ऑफेंस, बट नाउ इट इज एन ऑफेंस. आपकी जेब में मैंने हाथ डाला, आपका जेब खाली था, it is an offense. Notwithstanding the fact कि उस बॉक्स में जूल्स नहीं थे, आपकी पॉकेट में पर्स नहीं था. हो सकता था अगर आपने एक दिन पहले जूल्स ना निकाले होते तो उस डब्बे में थे. अगर आपने पर्स इस जेब में ना रख के उस जेब में ना रखा होता तो इस जेब में से तो मैंने निकाल लिया था पर्स. विच मीन्स इंट्रिंसिकली पॉसिबल था. जो चीज इंट्रिंसिकली पॉसिबल है, आई एम यूजिंग अ फ्रेज इंट्रिंसिकली पॉसिबल विच आई हैव टेकन फ्रॉम ऑनरेबल कोर्ट्स एंड इंग्लिश लॉ से लिया मैंने. जो चीज इंट्रिंसिकली पॉसिबल है वो अटेम्प्ट के दायरे में आएगी. अगर मैं आपके कोट में हाथ डाल रहा हूं और उसमें पर्स हो सकता था, आपका मैंने जूल्स का बॉक्स तोड़ा, उसमें जूल्स हो सकते थे. पर अगर आपका जूल्स का बॉक्स नहीं है, वो एक लकड़ी का एक पीस है जिसके ऊपर हमने एक बॉक्स का एक ड्राइंग की हुई है,
उसको मैं तोड़ता हूं समझ के कि ये तो बॉक्स है, पर वो तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसके अंदर तो जूल्स हो ही नहीं सकते थे। इंट्रिंसिकली पॉसिबल नहीं है। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो इम्पॉसिबिलिटी में जाएगी, वो अटेम्प्ट नहीं होगी। पर अगर हो सकता था तो इट इज नाउ एन अटेम्प्ट। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, सीधा हम चलते हैं 2 इलस्ट्रेशंस पे जो 511 की हैं, उस पे चलते हैं। A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds, after so opening the box, that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this section. चाहे jewels का डब्बा खाली था। अगले पे आओ। A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. Z की pocket खाली है। A is guilty under this section. ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं जो आर वर्सेस विलियम्स को निगेट करते हैं। इन दोनों में क्या था? इट वॉज इंट्रिंसिकली पॉसिबल। इंट्रिंसिकली पॉसिबल था। उसमें जूल्स हो सकते थे, उसमें पर्स हो सकता था। अगर कोई चीज हो ही नहीं सकती, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा कोट टंगा है, कोई मेरा दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। वो उस कोट पे गोली मारता है ये सोच के कि मैं अंदर हूं उसमें। क्या ये अटेम्प्ट है? अगर मैं अब आप वही वाली चीज को कि आप उसमें हो सकते थे, एक टंगा हुआ कोट में मैं नहीं हूं, इसको हम अटेम्प्ट नहीं मानते, क्योंकि इंट्रिंसिकली पॉसिबल नहीं है। जूल्स का बॉक्स कंटेन करता था जूल्स। आप कहोगे कोर्ट में भी तो आप कंटेन होते थे। एग्रीड फुल्ली। तभी मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान देना, ये बहुत ही टिकलिश मामला है। कोई हमारे पास बहुत कम इस पे 1-2 जजमेंट्स हैं बस। कोई मेरा दुश्मन है जो मेरा एक वुडू बनाता है। वुडू होता है ना, वो छोटी डॉल्स बना लेते हैं कपड़े के अंदर रुई भर के, काला जादू वाले। वो क्या करता है, मेरे हार्ट में रोज पिन मारता है कि मर जा मर जा मर जा। ऐसे मर जाता हूं। क्या ये अटेम्प्ट है? इज दिस अटेम्प्ट? नो। व्हाई? टू रिमोट, इंट्रिंसिकली पॉसिबल नहीं है। कोई किसी की डॉल में ऐसे पिन मारता रहे उसके हार्ट में और वो मर जाए, 1 in a million चांस होता है। टू रिमोट। Whoever causes death by doing an act, ये वो वाला एक्ट नहीं है। मेरी शैडो पे कोई गोली मारता है, क्या मेरी शैडो पे गोली मारने से मर सकता हूं मैं? अगर मेरी शैडो को गोली मारने से मैं नहीं मर सकता, तो कोट को गोली मारने जो खाली पड़ा है उसको कैसे मर सकता हूं? ये एक इतना थिन लाइन की चीजें हैं, इसको समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं। एक चीज जो रिमोट नहीं है, थ्योरी ऑफ रिमोटनेस को हम यहां पे इन्वोक करते हैं बार बार। जहां पे
एक खाली कोर्ट में गोली मारो तो आदमी नहीं मर सकता, मेरे शैडो को गोली मारो तो मैं नहीं मर सकता, मेरे वुडू में पिन चुबाओ तो मैं नहीं मर सकता। क्यों? सारी चीजें रिमोटनेस से जुड़ी हुई हैं। These things are too remote for an act to be completed. But एक बॉक्स जो नॉर्मली जूल्स का बॉक्स है हो सकता था, एक पॉकेट जहां नॉर्मली पर्स होता है उसमें पर्स हो सकता था। एक केस है हमारे पास, मुन्ना बिन, ये बहुत बार कोट होता है, मलेशिया का केस है। मैंने जैसा कि बोला, इम्पॉसिबिलिटी पे हमारे पास जजमेंट्स नहीं है, ज्यादा जजमेंट नहीं है, एक दो हैं बस। अगर मैं आता हूं इस मलेशिया के केस में, मलेशिया की आईपीसी, आईपीसी नहीं कहूंगा, वहां का पिनल कोड वो काफी हमारे से मिलता है। मुन्ना बिंटी अली, MUNAH, सेकेंड वर्ड बिंटी BINTI, थर्ड वर्ड अली ALI, अली वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलेशिया, 1958 का केस है। इसके अंदर there were, in Malaysia, abortion is banned, it is barred, not allowed, it's an offense. उसमें क्या हुआ, एक लड़की कोई डॉक्टर के पास गई, उसको हैवी ब्राइब किया कि डॉक्टर आई एम प्रेग्नेंट, तो प्लीज मेरा अबॉर्शन कर दो। उसने बहुत हेफ्टी सम लिया। जब उसने इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट किए तो पता चला वो प्रेग्नेंट नहीं है। बात पता चल गई, केस दर्ज हो गया डॉक्टर के ऊपर। नाउ दिस सेम थिंग केम अप कि अंदर तो वो प्रेग्नेंट थी नहीं, तो ये अटेम्प्ट कहां से हो गया? प्रेग्नेंट हो सकती थी, जूल में बॉक्स में जूल्स हो सकते थे, पॉकेट में पर्स हो सकता था। He was now convicted of an attempt. चाहे प्रेग्नेंट नहीं थी, कोई ओवम नहीं था उसका। ये हमारा बेस। एक और केस है, वो हमारा ही केस है, असगर अली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। असगर अली, ASHGAR, अली ALI, अली। असगर अली प्रधानिन, PRADHANIN, असगर अली प्रधानिन वर्सेस एम्परर, 1934, प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें एक a girl went to a person that she was in a family way. She wanted a miscarriage. She wanted a abortion. तो वो जब उसके पास गई तो उसने कहा ठीक है, मैं एक ऐसा तुझे दूंगा, एक दवाई जिससे वो मिसकैरेज हो जाएगा। और उसने उसको एक तो सिरका, जो एसिटिक एसिड होता है, विनेगर, वो और शुगर। तो एसिटिक एसिड और शुगर, ये दो चीजें थी। अब उससे कहां होना है? एसिटिक एसिड से, विनेगर से थोड़ा ना होता कोई अबॉर्शन ना। तो क्वेश्चन के वहां भी वो पकड़ा गया, मामला गया, कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ गई। नाउ द फाइनल जजमेंट केम अप वाज इंट्रिंसिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एसिटिक एसिड यानी विनेगर और चीनी से किसी का अबॉर्शन हो जाए। ये इंट्रिंसिकली पॉसिबल ही नहीं था। बोतलें की बोतलें पिला दो विनेगर की, कुछ नहीं होने वाला। हेंस इट इज नॉट अटेम्प्ट। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं इसमें, बहुत सारे कंफ्यूजिंग राइटिंग्स हैं इसमें।
इंडियन ऑथर्स ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं क्लियर किया हुआ, बट व्हेन वी गो टू सर्टेन पुरानी जजमेंट्स एंड थ्योरीज, तब ये मामला क्लियर होता है। जैसा कि मैंने बोला, हर केस को, ईच केस हैज टू बी टेकन ऑन इट्स ओन मेरिट्स। एक बॉक्स जिसमें जूल्स होते हैं उसको आईपीसी कहता है कि अटेम्प्ट है, अगर आपने उसको तोड़ा और वो खाली था, या आपने पर्स नहीं मिला जब कोर्ट में हाथ डाला, तो वो अटेम्प्ट है। बट देन एट द सेम टाइम, अ कोर्ट विच इज हैंगिंग ऑन अ वॉल, इंट्रिंसिकली पॉसिबल ही नहीं है एक खाली हैंगिंग कोर्ट के अंदर आदमी हो। सो व्हाट इज द पैरामीटर टू सी? क्या कोई चीज इंट्रिंसिकली पॉसिबल है? क्या रिमोटनेस उसमें आ जाती है? क्या उस चीज का अंजाम ये किसी भी हालत में हो सकता है? इफ द आंसर इज नो, इट इज नॉट एन अटेम्प्ट। इफ द आंसर इज यस, इट इज एन अटेम्प्ट। जूल्स में हो सकता था, जूल्स हो सकते थे, पर्स हो सकता था, किसी भी हालत में हो सकता था, पर टंगे हुए कोट पे किसी हालत में आदमी नहीं मर सकता। शैडो को मारने से किसी हालत में आदमी नहीं मर सकता। वुडू में पिन मारने से बाई चांस कोई कोइंसिडेंस हो जाए तो वो अलग बात है, कोई आदमी नहीं मर सकता। नहीं तो सारी दुनिया को वुडू कर करके पिन चुबा चुबा के मार दे। This is the reason why impossibility test is the most controversial of all tests. But then, luckily, we have got two important illustrations which now make the path very clear for us. If we were to sum up this, we have many types of impossibilities. We have a legal impossibility. लीगल इम्पॉसिबिलिटी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बारिश हो रही है, मैं किसी एक जगह दुकान में जाता हूं, कहीं भी, वो बाहर उन्होंने बाल्टी रखी हुई है जिसमें एक सारे अपने अपने अम्ब्रेलाज रखते हैं। मैं निकलता हूं और मेरे अम्ब्रेला में छेद है, फटा हुआ है, पुराना है। मैं सोचता हूं मैं जान के वहां रखता हूं, जाते वक्त मैं किसी का नया अम्ब्रेला उठा के ले आऊंगा। मैं जाता हूं, बाल्टी में से तेजी में अपना ही अम्ब्रेला उठा के चल पड़ता हूं। वहां बाहर आके देखता हूं, अरे ये तो मेरा अपना ही वापस आ गया। अब इसमें लीगल इम्पॉसिबिलिटी है। मेरी इंटेंशन थी, पर एक खाली इंटेंशन पनिशेबल नहीं है। ये एक हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। वी हैव ये हमारे पास एक रिपोर्टेड केस है इंग्लिश लॉ में, हॉटन वर्सेस स्मिथ, HAUGHTON, हॉटन वर्सेस स्मिथ का केस है, उसमें ये है। वी ऑल्सो हैव इम्पॉसिबिलिटी विच इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में जो अजगर अली वाला हमने केस देखा है, वो है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। इस तरह की हमारी बहुत सारी छोटी छोटी इम्पॉसिबिलिटीज के थ्योरीज डाली हुई हैं इन्होंने, बट ये मेजर दो थी जो हमें पता होनी चाहिए। Impotency takes the act of rape into impossibility, but no longer। 2013 के पहले की बात कर रहा हूं, because penetration was a must earlier। तो वहां पे जहां impotency है वो 354 में चला जाता था, बट रेप में नहीं जाता था पहले। अब 2013 में तो खैर रेप का पूरी परिभाषा चेंज हो गई है, सो वी हैव नाउ एब्सोल्युटली डिफरेंट लॉ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। सो हाउ डू वी
sum up the theory of impossibility. When I have done an act, एक्ट करना जरूरी है, खाली इंटेंशन काफी नहीं है. When I've done an act, the end of which हो ही नहीं सकता, उस एक्ट का अंजाम जो मेरा एम है वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अटेम्प्ट नहीं है. मेरी शैडो को शूट करने से मैं मर नहीं सकता, टंगे हुए कोट को गोली मारने से मैं मर नहीं सकता, पर जो एक जूल्स का डब्बा है उसमें जूल्स इंट्रिंसिकली पॉसिबल है. मेरे कोट की पॉकेट में मेरा पर्स हो सकता है. In other words, any act which is intrinsically possible will come under the dragnet of the offense of attempt. I hope I'm clear on this rather ticklish matter. मुझे पता है आपके बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन्स आ रहे होंगे, बिकॉज ये चीज ही ऐसी है. इसीलिए मैंने कहा हर केस हैज टू बी टेकन ऑन इट्स ओन मेरिट्स. वी कैन ले डाउन अ जनरल गाइडलाइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक दैट दिस फॉल्स एंड दिस डज नॉट फॉल. However, one golden line we can always say, one golden thread we can always weave, and which is, if an act is not intrinsically possible to fulfill, then it will never come under attempt. If I cannot cause abortion by vinegar and sugar, it is not attempt. But where I insert instruments, pregnancy could have been there, it is attempt. So I hope you have understood this rather complex matter. These were the theories where how to discern whether the act is a preparation or an attempt. Now that we are clear with this, we now go on to section 511. 511, whoever attempts to commit an offense punishable by this code, any offense which is punishable under this code. Question arises, does the offense of section 511, can it be made applicable to other special and local offenses? क्या मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ 511 लगा सकता हूं? क्या मैं और कोई स्पेशल एक्ट के साथ 511 लगा सकता हूं? द आंसर इज नो. व्हाई? हाउ डू आई से दिस? सेक्शन 40 के पैरा 2, when you go to section 40 para 2, section 511 is missing there. This is the reason why 511 is only applicable to IPC. Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, तो वो ऑफेंसेस पे सिर्फ लगेगा अटेम्प्ट का जहां पे इम्प्रिजनमेंट की सजा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है. Or to cause such an offense to be committed, and in such an attempt does any act towards the commission of that offense. पहला पॉइंट ये है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी ए सिर्फ उन सेक्शंस पे है जो ऑलरेडी कवर्ड नहीं है. जहां आईपीसी में सेक्शंस में खास
एक्ट या अटेम्प्ट बता दिया गया है उन पे 511 एप्लीकेबल नहीं है। जहां पे स्पेशल सेक्शंस आ गए हैं अटेम्प्ट पे, वहां भी 511 एप्लीकेबल नहीं है। जहां पे अब आईपीसी में जो ऑफेंसेस इंप्रिजनमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वहीं पे 511 लगेगा। Shall where no express provision is made by this code for punishment of such attempt। जहां पे स्पेसिफिकली अटेम्प्ट का पनिशमेंट दे दिया गया है, वहां 511 एप्लीकेबल नहीं है। Then what is the punishment in 511? Be punished with an imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to half of imprisonment for life। Now what do I mean by half of imprisonment for life? For this purpose मैंने पहले भी आपको बताया था। Let's go back to section 57. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। Attempt का मतलब हो गया 20 का half, यानी कि 10 years। So read with section 57 IPC, imprisonment, life imprisonment will mean for the purposes of 511 20 years। So half of 20 years means now 10 years। Which may extend to half of life imprisonment, or as the case may be, 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense। या जो उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट, जैसे लिखा है 7 years extending to 10 years, तो 10 साल। Half of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense। तो वहां पे इंप्रिजनमेंट का आधा, और अगर उसमें फाइन दिया गया और फाइन है तो वहां पे दे सकते हैं। तो अटेम्प्ट का सेक्शन कहां अप्लाई नहीं करेगा? जो सिर्फ फाइन से पनिशेबल हैं। सो इसका मतलब इफ वी रीड दिस होल, हाउ डज इट रीड? इट वेरी क्लियरली सेज दैट ए, वेयर there is a specific provision for punishment of attempt, section 511 has no application। Second point, 511 has no application to special and local laws because in para 2 section 40 511 is not there। Third point, this section 511 will apply to all the offenses of IPC which are punishable with either life imprisonment or any other imprisonment। Fourth point, in case of life imprisonment, it will be half of life imprisonment। How do we compute half of life imprisonment? For this purpose, we go to section 57 where it clearly says that for the purposes of computing fractions, life imprisonment will be taken as 20 years. Half of 20 years now means 10 years, or half of the longest imprisonment given। Longest term क्या हो गया? जहां पे लिखा है 3 years extending to 7 years, 5 years extending to 10 years, तो it is the higher punishment, उसका हम आधा लेंगे। So जहां लिखा है 7 years extending to 10 years, it is 10 years का half and not 7 years का half। और अगर उसमें लिखा है imprisonment और फाइन कई जगह लिखा होता है, तो फिर वहां सिर्फ और फाइन दिया जा सकता है ऐसे केसेस में जहां पे imprisonment और फाइन का प्रावधान है। इसकी पनिशमेंट अगर हम देखें, हम पनिशमेंट क्लासिफिकेशन, imprisonment for life or imprisonment not exceeding half of the longest term or both, accordingly as the offense is cognizable। तो attempt cognizable है कि non cognizable है, डिपेंड करेगा कि आपका offense cognizable है कि non cognizable है। bailable या non bailable depends। the offense is bailable, then attempt is also bailable, and if the attempt is non bailable, attempt is also non bailable।
Which court will try attempt? The same court which will try the act. So triable by the court by which offense attempted is triable. And now it is written non-compoundable. However, by the amendment of 2009 CRPC section 320 CRPC clause 3, attempt is now compoundable of offenses which are compoundable. अगर offense compoundable है तो अब 320 CRPC के amendment 2009 के बाद उसका attempt भी compoundable है. I hope now everybody's understood the entire law of attempt as we have read here and all the theories. Don't get confused about impossibility theory. I've tried to make it as clear as is possible. So we have finished all these aspects. अब थोड़ा सा part बचा है IPC का. In my next week, I think I'll be able to finish the whole thing. Thank you. God bless.